Good morning students. Today we will start our next chapter, that is carbon and its compound. So as the name indicate, in this chapter we basically study about the element carbon and the compounds which are made from carbon. अभी थर्ड चैप्टर metal and non metals. We study that carbon is a non metal. Carbon non metal and carbon is very important for us. All the living system like animals and plants, they all are made up of carbon. In daily life, the things which we consume mainly, like coffee, sugar, tea, all etc., all they are made up of carbon. Fuels like fuels which is obtained from wood, petrol, diesel, all these are made up of from carbon. Carbon is very important for us. And the compounds which are made from carbon is known as organic compounds. ठीक है, कार्बन से जो कंपाउंड्स मिलके बनेंगे that is organic compound. And the branch of chemistry in which we study about organic compounds or the compounds which are made from carbon are named as organic chemistry. ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड द कंपाउंड्स which are made up of carbon are named as organic compounds and the branch of chemistry in which we study about organic compounds. Is known as organic chemistry. तो अभी हमने स्टडी किया that living organisms mainly contain carbon. So we can say that the living things contain organic compounds. So we can say that organic compounds are made up of living things, that is animals and plants. So in 1815 there was a scientist Berzelius, who said that there is a need of vital force for the formation of organic compounds, and that vital force we are not able to create in laboratory. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स की, एंड इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस and according to Berzelius, a typical mysterious force is present between the organic molecules. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए we required a mysterious force which is named as vital force, and this force we are not able to create in laboratories. So according to Berzelius, we are not able to produce organic compounds in labs. But after that there was a scientist Holler, for the first time he prepared an organic compound in the laboratory accidentally. ठीक है, accidentally क्यों? Because Holler inorganic compound की formation कर रहा था, but by chance because of strong heating की वजह से organic compound की जो formation है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. जितनी हीटिंग उसको रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा हीट किया, एंड देन ही ऑब्जर्व दैट अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. जिस कंपाउंड की वो फॉर्मेशन कर रहा था, एक्सीडेंटली उस कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो पाई, उसकी जगह जो न्यू कंपाउंड बना, जब उसने उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी स्टडी की, दैट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड एक्सीडेंटली इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज बेसिकली फॉर्म्ड इन यूरिन्स. ठीक है, एंड दैट कंपाउंड इज urea. So the first compound which is prepared in laboratory, the first organic compound which is prepared in laboratory, that is urea, and this is prepared by Holler accidentally.
ठीक है, यूरिया हैविंग फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इज इट क्लियर? यूरिया की फॉर्मेशन से पहले ये कंसीडर किया जाता था that for the formation of organic compound we required a typical vital force which is not able to produced in the laboratory. Laboratories में हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते उस फोर्स को, so we are not able to form organic compounds in laboratories. But after the formation of urea, it is considered that no vital force is required for the formation of organic compound. So after urea, a large number of organic compounds are now prepared in laboratories. ठीक है? So now all the organic compounds containing carbon क्या? We know that atomic number of carbon is 6. So according to this electronic configuration of carbon 4. So according to electronic configuration, carbon has 4 valence electron. 4 valence electron है, that means it required 4 more electron to complete its octet. कोई भी एलिमेंट है वो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड फॉर्मेशन वो करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल और टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ठीक है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट शेल में ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, दैट इज कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम. 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कहेंगे डिप्लेट. तो इसकी वैलेंसी 4 है, इट रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो कार्बन हैज वैलेंसी 4. नाउ लुक एट हियर. In our previous chapter, we discussed about the formation of ionic bond. Ionic bond की हमने formation discuss की थी. If you remember that, what is ionic bond? Ionic bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom to complete their octet. ठीक है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर कर देगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. जिसके पास ऑक्टेट से एक या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दैट इज मेटल्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नॉन मेटल्स को विच रिक्वायर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज आयनिक बॉन्ड. अब यहाँ पे कार्बन के केस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा दैट कार्बन डज नॉट एबल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड. Now why carbon is not able to form ionic bond? Because in its last shell carbon containing 4 valence electron. तो अगर इसको अपना ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट करना है तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं. आइदर कार्बन लॉस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, आइदर इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन. या तो कार्बन अपने जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को एज इट इज लॉस कर दे या किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे. 2 ही ऑप्शन होते हैं आयनिक बॉन्ड में, या तो कैटायन की फॉर्मेशन हो या एनायन की फॉर्मेशन हो. अगर एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा देन इट कैरी 4 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया. एंड वी नो दैट फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए एलिमेंट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, लार्ज शेल में जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर ही तो सराउंड कर रहा है ना, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होगी. अगर इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करवाना है तो हमें पहले जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है उनको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे कार्बन को अपना डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं. एंड फॉर द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये C4 पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा. एंड फॉर दिस कार्बन रिक्वायर्स a large amount of energy.
and similarly when it gain 4 electron then it carry 4 negative charge. अब एक ही एलिमेंट में 4 नेगेटिव चार्ज आ गए, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई हो गए। कार्बन में प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो रिमेन 6 एंड इलेक्ट्रॉन 6 ऑलरेडी थे, 4 और एक्स्ट्रा लिए, इलेक्ट्रॉन 10, तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करने की बहुत कम हुई, तो उस केस में रिपल्शन ज्यादा होगी एंड C4 नेगेटिव आयन बिकम हाईली अनस्टेबल। तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए फर्दर वी हैव टू प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? इन केस ऑफ C4 नेगेटिव आयन number of electron become greater than number of proton, so this ion is highly unstable, or repulsive forces become greater than the attractive forces, repulsive forces attractive forces से ज्यादा होंगी, so to overcome the repulsion we must have to supply a large amount of energy. तो इन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एंड टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इन बोथ द केसेस कार्बन रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड। ठीक है, कार्बन को एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने के लिए बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एक साथ इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन जनरली ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता, दैट्स व्हाई कार्बन डज नॉट एबल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आइदर कार्बन हैव टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, एंड इन बोथ द केसेस इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is impossible to provide. Is it clear? That's why carbon does not able to form ionic bond. अब कार्बन आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो कार्बन किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा? कार्बन अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाय शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे एलिमेंट के साथ, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं देगा, कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन की टेंडेंसी सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म by the mutual sharing of electrons between 2 elements. ठीक है, the bond is formed due to mutual sharing of electrons between the 2 elements to complete their octet or duplet, that is covalent bond formation. और कोवलेंट बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेंगे दैट इज कोवलेंट कंपाउंड। तो कार्बन सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और हमें पता है कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो वी कैन से दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट बाय नेचर। इज इट क्लियर? सो यहां से कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन की टेंडेंसी 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की है, सो वी कैन से दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट बाय नेचर।
टेट्रावेलेंट मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। टेट्रावेलेंट के अकॉर्डिंग कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑल द 4 बॉन्ड्स डू नॉट लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, चारों के चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई नहीं करेंगे। जो स्ट्रक्चर होगी कार्बन की दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। Where the normal solid line represent that 2 bonds are lie in the same plane. One dark bond represent that, ठीक है, एक बॉन्ड हमारा डार्क है तो ये बॉन्ड आपका अबव द प्लेन बनेगा। एंड द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट दैट 4th बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिलो द प्लेन। ठीक है, तो कार्बन में जो 4 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, वन इज अबव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन। Is it clear? And the structures is appear like tetrahedral structure. So we can say that carbon is tetrahedral by nature. Next is type of covalent bond. Types of covalent bond. Now covalent bond is formed due to sharing of electrons. अब दो एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसके बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Now single covalent bond when both the element share single इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर दोनों एलिमेंट ने एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर करके बॉन्ड बनाया है देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। Like in case of hydrogen, both the hydrogen carry only 1 valence electron। ठीक है, दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल के साथ डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ टू कंप्लीट देयर डुप्लेट दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो बोथ शेयर देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दी फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक इन केस ऑफ O2 molecule, oxygen. In case of oxygen, electronic configuration is 2,6. 2,6 that means both the oxygen required 2 electrons. दोनों को दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो both share their 2 electrons. दोनों आपस में अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब फर्स्ट ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए शेयरिंग में और सेकंड ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, तो हम ये कह सकते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। तो जितनी शेयरिंग हुई उतने ही बॉन्ड बने। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो डबल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल में अब आपको पता ही चल गया होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का हमें पता है नाइट्रोजन हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो बोथ द नाइट्रोजन एटम रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो दोनों क्या करेंगे आपस में अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। सो द बॉन्ड फॉर्म्स अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर में एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एलिमेंट अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करेंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बोथ द एलिमेंट शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। इज इट क्लियर? इससे ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं कर सकता बिकॉज जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एरिया आपका मिनिमम होता जाएगा। शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन क्लोज आएंगे। तो जब 3 से ज्यादा फर्दर और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लोज आने की वजह से फर्दर दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। सो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तक ही शेयरिंग होगी आफ्टर 3।
repulsive forces become greater than attractive forces. So on the basis of sharing, single, double or triple covalent bond are formed. Next, formation of covalent bond. Formation of covalent bond we will discuss in our next lecture. ठीक है, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट कंपाउंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? आई होप you understood that why carbon able to form only covalent compound or why carbon does not give ionic compound formation. All the carbon containing compounds are named as organic compounds. Why carbon is tetravalent or it has tetrahedral structure. Is it clear? Thank you and have a nice day.